when darkness deepens, strangling the earth's breast, and man's corporeal mind is the only lamp. As a thief in the night shall be the covert tread of one who steps unseen into his house. A voice ill heard shall speak, the soul obey. A power into mind's inner chamber steal, a charm and sweetness open life's closed doors, and beauty conquer the resisting world. The truth light capture nature by surprise. A stealth of God compel the heart to bliss, and earth grow unexpectedly divine. In matter shall be lit the spirit's glow, in body and body kindle the sacred birth. Night shall awake into the anthem of the stars. The days become a happy pilgrim march. Our will, a force of the eternal's power, and thought, the rays of a spiritual sun. A few shall see what none yet understands. God shall grow up while the wise men talk and sleep. For man shall not know the coming till its hour, and belief shall be not till the work is done. श्रद्धेय डॉक्टर आलोक पांडे, प्रिय अशोक, आदरणीय भौणी मैंने श्रद्धेय भाई मैंने आज समावेश उद्देश्य सामान्य सूचना रही आम आसंता काली 3 तारिख दिन आम एक स्वाभाविक पाठ्यक्रम स्थिर करते जोटा कि सब वर्ष आम करूँ नवदीप गेस्ट हाउस आलोक भाई राजी होते काली कहवाई सिचुएशन जहाँ देखिए आप मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस समस्ते सबुआड़ू जहाँ मेसेज आसूँ आप व्यक्तिगत भाव आप जहाँ सूचना दूसरी ये गोटे बहुत महान बहुत विशिष्ट महान और पवित्र आत्मा ये सिद्धांत कले एक दिवस रखापी एवं स्थान समय परिस्थिति परिवेश सबको निर्वाचित करगले आप देखु यही कार्यक्रम आम ओडिशा करते कौन तार प्रभाव होता पंडित सबकि आत्मा सजता समस्त उपस्थित क्रियाकर्म इत्यादि एवं गतकाली सूर्योदय समय अस्थि विसर्जन सुंदर एकदम एत पवित्रता वातावरण कहीं भी चेष्टा कर
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଯଦି ବସିଛୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରିଲେସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋଟିକ କଥା ଆପଣ ଏଭଳି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭେରି ସ୍ମାଇଲିଂ ଫେସ୍ ନେଭର ଷ୍ଟପ୍ ସ୍ମାଇଲିଂ ଯାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ହସୁଛନ୍ତି ନ ଦେଖିଲେ ବେଳେ ବି ହସୁଛନ୍ତି ଠିଆ ହେଲେ ମାଇକ୍ ଆଗରେ ହସୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ୟୁନିକ୍ ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ to try to smile always with full gratitude to you. ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ସମସ୍ତ କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ସେ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଥିଲେ ଏତେ ପ୍ରକାରର ବୋଝ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା କେହି କିଛି ଅନୁଭବ କରିବାରେ ତାଙ୍କ ବୋଝ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମଧାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଥିଲା ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଏ ସମସ୍ୟା ସବୁକୁ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଦାଦାଙ୍କର ରିପିଟେଡଲି ସେ ମେସେଜ କରନ୍ତି ଲେଟ୍ ଅସ୍ ୱାର୍କ ଇନ୍ ହାରମୋନି ଏବଂ ତା ତଳେ ହେଉଛି ହାରମୋନି ଆଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିବି ମାମୁଁଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଜଣାଉଛୁ ବା ମାମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ତାହେଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅସଙ୍ଗତି ରହିବନି ସେ ଯେମିତି କାଲି ଅସଙ୍ଗତିକୁ ନେଇକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରୁ ଯାବତୀୟ ଅସଙ୍ଗତି ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଭଳି ଗୋଟେ ମୁଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ହୃଦୟ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବାବେଗର ସହିତ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଯେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଅସଙ୍ଗତି ଅଛି ମୁଁ ଅସଙ୍ଗତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି କିନ୍ତୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାକୁ ଏଇଠି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଦ ମୋଷ୍ଟ ରିଏଲ୍ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ମାଙ୍କ ପାଇଥାଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ରିପିଟେଡଲି କହୁଥିଲେ ଯେ ହାରମୋନି ଆଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ସଂଗତି ରକ୍ଷା କରିବା ମୋର ଏତିକି ଥିଲା ନିବେଦନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ପାଖରେ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମେ ସବୁ ପିଲାଦିନୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ୍ ସୋସାଇଟିରେ କଟକରେ ଗଢ଼ିଥିଲୁ ସେ ଯୋଉ କେତେ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ କାମ କରୁଥିଲୁ ଅଶୋକ ଆମକୁ ଜଣେ ତାପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲି ଆସି ଏଠି ସେତୁ କଲେ କୋଟି ଯାଆନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଥିଲାବେଳେ ଅତି ଗଭୀର ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ କାମରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଏବେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲା ପରେ ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତଥାପି ସେ ଜବ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାର ସଂଗଠନ ପାଇଁ କାମ କରିବେ ମୁଁ ଯେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମୋ ତରଫରୁ ଖୁସି ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଯେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଆସନ୍ତୁ ଏତିକି ସବୁ କରିଦେବେ श्रद्धेय बंधुगण आज जो सका जो 5 मिनट मत कहुई किसी करने कहली यूजुअली इन फैक्ट स्पीचलेस मामूकर आज अवस्था से यूनिवर्सल हो गई मोर मन अच्छी जड़े विशिष्ट साधक कहते when we leave our body, if you have the right aspiration, your soul, your life work, your breath, your everything gets universalized. आज मामू सारा ओडिशा रे सब पार्श्व भितर एक हुए तो इन बॉडी he was alone in one place किंतु आज से समग्र ओडिशार सब प्रपल्ली सब जगह से आम सागे उपस्थित बंधुगण मामू विषय यदि आम चिंता करवा सब बड़ कथा है डिफरेंट से अलग थे
अपन ताकू देखिथे simplicity personified. He always used to say, the greatest things are simplest. Therefore, श्री मास्टर शिक्षा जहाँ से निज जीवन में स्थापन करते that was also simple as anything. जे जहाँ को देखुले ज्योति प्रसाद को कहले he was to greet them with a smile. He would put the hand around the shoulder and speak something which is very different. You know, से समझना के भीतर Babaji Maharaj प्रकृति को करी, he was seeing the possibility. He was seeing what हमें करी परिवार मान पाए. एवं से हम पाई थिले एक खाली प्रदर्शक नुह, हम भीतर भी से मान पाई श्रद्धा, प्रेम, समर्पण भाव सब प्रे करथिले. किंतु आजी से आम भीतर अच्छा उपस्थिति वेरी कंक्रीट एक कथा अवश्य डॉक्टर पांडे कहे लिखा चंपकलाल स्पीक्स रे they whoever lifts the body in 3 places including Pondicherry he gets the stamp of the mother. It was his soul's very conscious decision. से जहाँ काम करड़िशा तार तुलना ना व्यक्ति मात्र कह से जो कम आरंभ कर कम को आगे नवा से कम शेष ना से कम को आगे नवा आम प्रति श्रद्धांजलि सबुठ बड़ उपादान है. बंधुमिति कहूँ चाहिए जे जीवन प्रति मुहूर्त जीवन प्रति निश्वास श्वास केवल माँ थे आप देखिए से अजात शत्रु थे. बाबाजी महाराज प्रकृति सी प्रतिनिधि जहाँ को थ्रू से ओडिशा काम करते. प्रणब दास से अति प्रिय पात्र. आश्रम समस्ते ओडिशा समस्त एते भल पाते तो भाषा वर्णना कर जो पुरुष युग पुरुष कौन से एडजेक्टिव लगेबी कहबी जे चाइल्ड ऑफ द मदर इवन बियॉन्ड द आइडियल चाइल्ड ऑफ द बुकलेट से आम भर अच्छा. थे नलिंदा गोटे मेसेज मन पड़ू स्पीकिंग इन दी प्लेग्राउंड. He said, Bhagavad Niveda once said that Swami Vivekananda's breath is the breath of India. बंधुगण मामा मान भीतर अच्छा शोक प्रकाश करवा हूँ अपमान हो ब्रेथ निश्वास प्रश्वास आम नौ आखिर आलुओ ओडिशा को उज्ज्वलित कर इवन वेरी कंक्रीट फिजिकल प्रेजेंस आम भीतर अच्छी धरी नहीं आगे आगे धन्यवाद मास्टर भाई. डॉक्टर अनुप कोटी डॉक्टर आलोक पांडे विषय हूँ सिग्निफिकेंस डेथ ऑन ऑस्पिशियस डेज. कुछ समय ऐसे होते हैं जब बोलना कठिन होता है और हृदय में भाव होता है कि बहुत नीरवता में हम लोग प्रवेश करें. इसलिए नहीं कि मामो कदर भाई नहीं है, बल्कि मेरा जो अपना अनुभव है उस समय से
जब मैं यहाँ पर आया तब से अभी तक कि वो पूरे कॉन्शियसली सचेत होकर उपस्थित हैं। तो मैं क्या कहूँ ये नहीं समझ आता, क्योंकि उनके लिए ये शब्द मृत्यु नहीं अप्लाई करता है। ये पहली चीज मैंने श्यामा दीदी को बोली कि उनके लिए ये शब्द नहीं अप्लाई करता है। मृत्यु उनके लिए अप्लाई करती है जो अज्ञान में, अंधकार में रहते हैं। तो ये जो पूरा मन प्राण शरीर के लोग हैं उसमें ही जो विचरण करते रहते हैं, उनके लिए मृत्यु शब्द अप्लाई करता है, क्योंकि शरीर त्यागने के बाद वो दूसरे लोगों में भ्रमण करते हुए अंत में जाते हैं। सावित्री में बड़ा सुंदर वर्णन है इसका, कैंटो 14 में। वहां पर वो कुछ देर विश्राम करके आ जाते हैं। तो मृत्यु के बाद उनको इस संसार की धीरे धीरे स्मृति समाप्त हो जाती है, और जब वापस आते हैं तो वहां की स्मृति समाप्त हो जाती है। मेरा अपना जो अनुभव है, और इसको मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मामों के साथ ये अप्लाई नहीं करता। ये दो प्रकार के स्टेजेस बताए हैं हमारे ईश्वर ने विकास के। एक है जब हम अविद्या में प्रगति करते हैं, और उसको कहा गया है कि अविद्यांच मृत्युम तीर्थवा, और दूसरा विद्यांच अमृतम अश्नुते। जो अविद्या में हम प्रगति करते हैं, मृत्यु के द्वार से बार बार गुजरते हैं, जिससे कि धीरे धीरे हम मृत्यु के पार चले जाएं। मृत्यु के पार चले जाने का मतलब है कि मृत्यु का ना हमारे अंदर कोई भय है, ना मृत्यु से कोई, शरीर को छोड़ा। जैसे एक व्यक्ति लिटरली वस्त्र बदलता है तो केवल एक किताब की चीज नहीं रह जाती, एक लिविंग फैक्ट हो जाता है। जैसे शेरविन बताते हैं कि आई हैव डिलिबरेटली गिवन अप दिस बॉडी, तो वो फिर मृत्यु शब्द वहां नहीं अप्लाई करता, ही हैज गॉन बियॉन्ड। और दूसरा है विद्या के द्वारा वो अमृतत्व, अपने अंदर के चैत्य सत्ता, उस विश्व विराट और उससे भी परे अनंत के साथ उनका संबंध हो जाता है। तो वहां मृत्यु अप्लाई नहीं करती, क्योंकि व्यक्ति फुल्ली कॉन्शियस ऑफ हिज इमॉर्टैलिटी ही वॉक्स। ये दोनों ही चीजें गदाधर के साथ अप्लाई करती है। मेरा देश का जो उनके साथ अनुभव, ही वाज ऑल ए फ्लेम ऑफ ग्रैटिट्यूड, सर्विस एंड लव फॉर द मदर। बहुत इंस्पायरिंग था, थोड़े क्षणों के लिए भी कॉन्टैक्ट होना उनके। जीवन में जो उनके साथ प्रत्यक्ष जो मेरा अनुभव हमेशा रहा है कि वो फ्लेम ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड सर्विस। जब भी उनके साथ ट्रैवल भी किया है मैंने, नानी जोड़ा भी गया था और भी जगह पर गया है, उन्होंने कभी कोई और विषय पर बात किया ही नहीं सिवाय माँ और शेरविन के कार्य को लेकर। एक बहुत रेयर क्वालिटी है। नहीं तो लोग बैठते हैं आपस में कुछ ना कुछ, एक बेकार की बातें, बाहरी संसार, व्यक्तियों की बात, इसकी बात, ये उनके मुख से कभी मैंने तो नहीं सुना। जब भी वो बात करते थे तो माता जी के कार्य के बारे में, उनके प्रवृत्ता के साथ जो संस्मरण है या अन्य साधकों के साथ, इस तरह की बात होती थी। और मुझे बहुत ही सुंदर लगता था, क्योंकि बाकी बातें बहुत ड्रेन करती हैं मनुष्य को। तो एक तो ये चीज थी। दूसरा, माँ की सेवा, कितनी तरह से उनका काम हो। दो तीन चीज जो उन्होंने विशेष रूप से मुझे बड़ी सुंदर लगी, खासकर 3-4 वर्षों में एक वृत्ति मैंने देखी थी, जिससे मुझे एक हल्का सा एक संकेत मिला था
एक तो वो बार बार बात करते थे, ये जो बात बताई बाबरी भाई ने कि हार्मनी एट एनी कॉस्ट, ये बात पर बहुत एम्फेसाइज करते हैं। हार्मनी एट एनी कॉस्ट, यूनिटी, ये दो चीजों पर बार बार वो जब भी मिलते थे पता नहीं उनके अंदर से। दूसरा, उनके अंदर एक आंतरिकता इस प्रकार की आ रही थी जहां उनको लग रहा था कि एक कोई जैसे कहते हैं ना, ब्रेक थ्रू इनटू समथिंग न्यू। वो जो काम थे वो चल रहे थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं था कि अब कुछ और नई चीज होनी चाहिए जो एक बड़ा स्पष्ट रूप से संकेत। तो उस तरह का जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है उससे थोड़ा सा, जिसको कहते हैं पीछे की ओर हटना, पीछे से सब कुछ देखना। और तब मुझे ये चीज बहुत स्पष्ट रूप से लगी कि कहीं ये ट्रांजिशन का तो नहीं इनका मोमेंट। ये मुझे 2 साल से ये भाव, और खासकर पिछले साल जब मैं मिला था अप्रैल में, तो बहुत प्रबल रूप से भाव, क्योंकि उनके अंदर जब भी बात करते थे वो यही कहते थे कि क्या हम लोग को यही करना है या और भी। तो ये एक ट्रांजिशन का एक वो भाव आ रहा था। और तीसरी चीज जो आज विषय दिया है, विषय भी क्या हम लोग कहें कि निश्चित रूप से ये तो हम सब जानते हैं कि समय और काल और स्थान, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस तरह से जो जिसको कहते हैं कि देह त्याग होता है, इसको मृत्यु नहीं कहते, देह त्याग होता है, वो कर सकता है जिसको इच्छा मृत्यु का ऑलरेडी, अब नॉर्मली हम कहते हैं वरदान मिला था, हम ये कह सकते हैं जिसके अंदर ये ऑलरेडी इच्छा मृत्यु की संभावना प्रकट हुई थी। माता जी बताती है कि साइकिक बीइंग डिसाइड्स, और वो सच भी है, लेकिन साइकिक बीइंग क्यों डिसाइड करती है? नॉर्मली अगर शरीर क्षत हो गया, कोई और ऐसी समस्या हो गई, तो वो साइकिक बीइंग का डिसीजन भी एक बड़ा हेल्पलेस डिसीजन होता है। वो क्या करेगी अब इस शरीर के अंदर, तो वो डिसाइड करती है। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं। इच्छा मृत्यु का मतलब है कि अब वो कोई नई चीज में ट्रांजिट करना चाहती है इस संसार में। जो कुछ उनको करना था, उनका जो मिशन था, उनका जो पर्पस था, वो क्लियरली देखती है कि अब ये नहीं, अब समथिंग एल्स। तो ये इच्छा मृत्यु का एक हम वरदान कह लें। कुछ लोगों के जीवन में मैंने देखा है अपने आंख से। ऑफ कोर्स यहाँ में महर्षि अरविंद, चंपकलाल जी, वो एक अलग श्रेणी है, वहां पर कोई भी नियम अप्लाई नहीं करता है। चंपकलाल जी जंतराल में जाके 9 मई को शरीर त्याग देते हैं, इट डजंट मैटर, बिकॉज वो फ्री है। और महर्षि अरविंद के लिए देश काल के ऊपर है पूरी तरह। लेकिन एक श्रेणी होती है जो ठीक इसके बाद आती है, जहाँ इच्छा मृत्यु। और माँ कहती है ये इच्छा मृत्यु की संभावना, श्री अरविंद भी इसको बताते हैं इवनिंग टॉक्स में, ये एक स्टेप है टुवर्ड्स द ट्रांसफॉर्मेशन। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के पहले आपके अंदर ये कैपेसिटी आएगी कि जीवन को जब तक आपको प्रॉन्ग करना है प्रॉन्ग करेंगे, और जब आप चाहेंगे तो उसको स्वेच्छा से बड़े सचेतन रूप से वर्णन करेंगे। और इसकी हम लोग देखते हैं कुछ कथाओं में, बुद्ध देव जी के साथ देखते हैं हम लोग कि उन्होंने तो बड़े कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं, वो स्थान भी वो डिसाइड करते हैं, जाते हैं विशेष जगह पर, कुशीनगर, और वो खुद कहते हैं कि मुझे वहाँ जाना है। और 2 दिन के बाद वो बहुत हिंट देते हैं कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन कोई इस चीज को समझ नहीं पाता है। और हम ये देखते हैं, और भी भीष्म पितामह की कहानी हम सबको पता है कि वो प्रतीक्षा करते हैं कि 6 महीने बाद जब सूर्य उत्तरायण में आएगा तब मैं जाऊंगा। तो एक शुभ काल का अपना अपना एक कंसेप्शन है। लेकिन हम सब के लिए सबसे शुभ काल कौन सा है? माता जी क्या कहती है 29 फरवरी के बारे में? वो कहती है एक ट्रांजिटरी बॉडी, अपने जन्मदिन की बात कर रहे हैं, अपने जन्मदिन की, टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ ए ट्रांजिटरी बॉडी कैन सेटिस्फाई सम फेथफुल फीलिंग्स. To celebrate the birth of the eternal can be done at any moment in the universal history. But to celebrate the birth of a new consciousness is an exceptional privilege. तो यह वो दिन है जो अगर हम लोग महर्षि अरविंदो की दृष्टि से देखें तो सबसे विशेष दिन, स्वयं माँ कह रही है कि यह दिन सबसे विशेष है 29 फरवरी, और उसका नाम माँ ने क्या दिया है? केवल गोल्डन ने नाम नहीं दिया है, माँ ने एक और नाम दिया है, इट इज द डे ऑफ द लॉर्ड. तो ये वो दिन है जब भगवान स्वयं पृथ्वी पर, क्योंकि सुपर माइंड impersonally supermind, supramental, but otherwise what is supermind? Omnipotent, omniscient, omnipresent, it is the Lord. माँ कहती है, श्री अरविंद बताते हैं ये लॉर्ड ही है,
और वह ईश्वर स्वयं हम सबके बीच आते हैं, जो हम लोग जगन्नाथ की रथ यात्रा में जिसकी परिकल्पना करते हैं कि भगवान बाहर निकल के आए, तो ये वो दिन है जब भगवान हमारे बीच में आते हैं। तो ये एक बहुत ही अति विशेष दिन है जब वो ब्रह्म मुहूर्त की वेला में शरीर त्याग करते हैं। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि कोई जहां पर भी है जो डिवोटी है उसके लिए तो भगवान सदैव आते हैं, लेकिन ये स्थान का चयन, माँ ने यहाँ तक कहा है कि माँ से डिसाइपल ने पूछा, ये तो मालूम ही है, अभी अशोक दादा ने बताई बड़ी सुंदर बात कि यहाँ पे शरीर त्याग करना एक बहुत विशेष बात है, क्योंकि वो लोग मृत्यु के पास नहीं जाते, वो सीधा श्री अरविंद धाम में जाते हैं। और वो उन्होंने बताया, श्री अरविंद लोग जो सूक्ष्म सटल फिजिकल में है, वहां मृत्यु नहीं है, शोक नहीं है, संताप नहीं है, और कॉन्शियसली, ये नहीं कि संताप के परे चले गए, कॉन्शियसली श्री अरविंद के धाम में रहते हैं। वहां क्या करते हैं, वहां भी काम दिया जाता है। ये मैं कुछ साधकों के जीवन से जानता हूँ, जिनके संपर्क में मैं आया था, एक अंतर उसमें, मैंने उनसे पूछा आप यहाँ क्या, वी आर गिवन ए वर्क। मेरे खुद के लाइफ में नलिदा आफ्टर ही हैज लेफ्ट द बॉडी, उन्होंने मुझे सटल आश्रम का दर्शन दिखाया, मुझे कहा यहाँ तुम्हारी जगह, तब मुझे कुछ काम वाम कुछ नहीं मिला, यहाँ तुमको काम करना है। बड़ा सुंदर ढंग से, और वही हुआ। एज ए डॉक्टर ही डिडंट शो मी, ही शोड मी ए बिग लाइब्रेरी, ज्ञान से संबंधित काम करना है। अब मैं तो डॉक्टर था, तब मालूम ही नहीं था, तो उनका अपना काम है। और भी कुछ साधकों के जीवन को जानता हूं, तो वो वहां सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। फर्क इतना है कि पहले वो उड़ीसा के कुछ सेंटर्स में कार्य कर रहे थे, वहां तो करेंगे, लेकिन वो न जाने अब और कहां कर्म के लिए प्रेरित करेंगे, इंस्पायर करेंगे, माँ की सेवा के लिए, वी डोंट नो। क्योंकि बड़ी सुंदर बात की यूनिवर्सलाइज हो जाती कॉन्शियसनेस, देह में सीमा होती है। कल कोई ये बात पूछ रहे थे कि उन्होंने इतना काम किया, बिल्कुल, अब काम का क्या होगा, और बेहतर होगा, क्योंकि उनकी चेतना अब पीछे से और अच्छे ढंग से काम कर पाएगी। ये विशिष्ट साधकों के साथ ये निश्चित रूप से अप्लाई करता है। दे वर्क मच बेटर। अमृतदा की कहानी है, पवित्रदा की कहानी, इन सबके बारे में माता जी ने कहा है। दे आर मोर एक्टिव बट इन ए डिफरेंट वे, मतलब वो एक साथ कई लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। जैसे जो हम लोग उनके फिजिकल प्रेजेंस में महसूस करते थे, अब और तो कांटेक्ट में आए, अभी वो बिना एक्टिव कांटेक्ट के ही विल वर्क। अब उनको माँ ने अपने डायरेक्ट आर्मी ऑफ लाइफ में, वो तो थे ही हमेशा, लेकिन अब फिजिकल की जगह सटल प्लेन से करेंगे। कब तक करेंगे, वापस आएंगे नहीं आएंगे, इस श्रेणी पर अप्लाई नहीं करता है, क्योंकि माँ बताती हैं 2 श्रेणी की सोल्स होती हैं। मुझे जब पता चला और जब मैं यहाँ पर आ रहा था, तो मेरे मन में 2 वाक्य आए स्पॉन्टेनियसली। एक तो आया, एक ग्रेट सोल हैज डिपार्टेड, पर उस ग्रेट शब्द में केवल ग्रेट उस सेंस में नहीं था जिसमें हम यूज करते हैं। तो ग्रेट सोल का जो अर्थ आया वो मैं शेयर कर रहा हूँ। माँ होता को एक कन्वर्सेशन है, उसमें कहती है 2 प्रकार की सोल्स होती हैं। एक होती है जो मध्य साधारण श्रेणी की होती है, वो बंधी होती हैं, वो आती हैं, स्ट्रगल करती हैं, धीरे 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 भगवान की ओर जाती है। दूसरी होती है जिनका नाम माने दिया है हीरोइक सोल। हीरोइक सोल आर फ्री एक्चुअली इनसाइड। उनको बाहर देख के आप नहीं जान सकते कि फ्री है कि नहीं, वो अंदर में फ्री होती हैं और वो कॉन्शियसली आती हैं, कॉन्शियसली काम करती हैं और कॉन्शियसली डिपार्ट करती हैं, जिनके बारे में हम देखते हैं दुर्गा स्तोत्र में। श्री अरविंद ये कहते हैं कि माता दुर्गे, हम जन्म जन्म आपकी संतान आते हैं, आपका कार्य करके वापस आपके गोद में चले जाते हैं। हाँ, ये एग्जैक्टली द लाइन दैट फ्लैश्ड वाज दिस लाइन कि ही इज ए हीरोइक सोल, जो मैं तो नहीं जानता उनके पहले के जीवन को, लेकिन ये स्पष्ट संकेत हुआ कि ही इज ए हीरोइक सोल, जो आई संसार में आई ही एकमात्र प्रयोजन से कि माँ का काम करेंगे, जो भी दिशा में माँ रखेंगी। और जब उनको ये क्लियर हो गया अंदर से कि मुझे जो करना था इस शरीर से, ये नहीं कि हमेशा का तो काम चलता रहता, इस शरीर में जितना काम करना था वो एक प्रकार से उनका हो गया। अब वो किसी चीज को अप्रत्यक्ष रूप से और अन्य रूप से कार्य करेंगे।
ये बात की उनको ये भाव हो रहा है कि ये काम जो करना था वह इस जन्म में हो गया है, ये मुझे 1-2 साल से, जैसा मैंने बताया, प्रतीत हो रहा था। उनके जो छोटी छोटी इधर उधर की बात, कोई उन्होंने हिंट नहीं दिया जाने का, इसका कुछ भी नहीं, लेकिन उनके अंदर एक भाव जिसको मैं ऐसा लगता था कि फील कर पा रहा हूँ कि ही वांट्स टू टेक अ ग्रेटर लीप टुवर्ड द फ्यूचर। और उनके ऊपर ये शब्द डेथ वगैरह वी शुड नॉट इवन टॉक अबाउट डेथ। और वास्तव में इस तरह के जो डिपार्चर होते हैं उस दिन जब भगवान स्वयं आ रहे हैं, वैसे तो भगवान के डिवोटीज के लिए वो आते हैं, लेकिन वह दिन जब वो सारी सृष्टि के लिए उपलब्ध है, तो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि व्हाट इट मीन्स ब्रह्म मुहूर्त में उस समय। और हम सब उनको तो क्लियर है कि वो आते हैं एक दिन, जैसे यहीं पर देह त्याग के लिए वो आते हैं। और जो मेरा अपना भाव है, मेडिकल चीज की बात अलग है, जब वो प्लेग्राउंड के बाद थोड़े समय के लिए गए थे, ज्यादा नहीं रहे, वो समाधि पे आ गए थे। और मुझे मालूम नहीं समाधि पर किसी ने उनको देखा था कि नहीं देखा था, पर उनकी जो भाव भंगिमा थी कि टेकन ए कॉन्शियस डिसीजन एट दैट मोमेंट। बाकी सब चीजें जो है बाद में दे आर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द डिवाइन, क्योंकि माने ये सैंक्शन कर दिया था, इसलिए सारे लोगों के विचार इस प्रकार के हो गए कि जो उनके शरीर को छोड़ने में सहायक हो। और यह भी मैं और भी 2 साधकों के एक्सपीरियंस से जानता हूँ क्लियरली कि जब वो कॉन्शियसली चूज करते हैं और माँ का सैंक्शन होता है, तो कोई भी व्यक्ति फिर उसमें कितना भी प्रयास कर ले इंटरफियर नहीं कर सकता है। आप डॉक्टर के पास ले जाओ, डॉक्टर उस तरह से नहीं देखेगा। हाँ, दवाई दे दो, दे विल नॉट वर्क लाइक दैट, क्योंकि वो डिसीजन उनका है।